Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to deliver my lecture, my second lecture on the topic, the fantastic shoemaker. Before going to start this lesson, let me tell you about the objective that you should be able to attain at the completion of this lesson. As usual, first of all, we have MCQs. It means that you should be able to make MCQs out of the text at the completion of this lesson. Secondly, translation. You should know about the words meaning and translation of the text. Then on third, we have short question. You know that at the end of this lesson you have been given short question which is related to comprehension. So you should be able to answer those short questions at the completion of this lesson. And most importantly, you should know about the grammatical structures that have been used inside the sentences of this lesson. And its general objectives, that is dignity of labor. That is dignity of labor. Okay. Before going to start the translation of this passage, let me present a brief sketch of the same lesson. The author tells us about basically about a shoemaker whose shop is means in Kisahwani Bazaar, which is a very busy marketplace. And he, for the first time when he paid a visit to his shop, so he was ordering a pair of shoes for the upcoming Eid. And apart from that, we are told about the condition of his shop, that a big Peshawari chappal was hanging over there on the door of his shop. And he further says that his shoes always fit in the feet. Apart from that, the author says about about his shoes, that his shoes was mysterious and wonderful. And in the last, we are told about his face, that his face was smiling face, but it was wrinkled. We are told about his face, that it was wrinkled and it was just like a serpent, just like snake. Okay, though it was smiling, but the skin of his face were wrinkled, just like the wrinkled skin of the snake. Okay, now let me translate this passage, so please be attentive. That is a bit difficult. The rest, the fantastic shoemaker, the rest of the shop, यानी उस दुकान का जो क्या था, बाकी का हिस्सा था, बाकी की जो दुकान थी was as barren, वो इस तरह का ऐसा बंजर था. barren means बंजर, यानी बाकी की जो दुकान थी, दुकान का जो बाकी हिस्सा था, rest means बाकी का of the shop, यानी दुकान की जो बाकी का जो हिस्सा था, was as barren, वो ऐसा बंजर था. barren means बंजर, infertile, as desert, जिस तरह सहरा होता है, यानी दुकान का जो बाकी का हिस्सा था वो इस तरह बंजर था जिस तरह की एक सहरा बंजर होता है. because desert सहरा, because क्योंकि he made, क्योंकि वो बनाता था, यानी जरीन गुल का जो था वो सिर्फ वो जूते बनाता था. he made only those pairs of shoes, वो सिर्फ उस क्या जूतों के जोड़ों को बनाता था. that was ordered means जिसका उसको ऑर्डर दिया गया था, जिससे उसको फरमाइश की गई थी. ऑर्डर मीन्स फरमाइश करना, यानी जरीन गुल की जो दुकान थी वो बिल्कुल क्या था, वो बंजर था, एक सहरा की तरह, क्योंकि वो सिर्फ वो जूते बनाता था जिसका उसको फरमाइश की गई हो या फरमाइश की गई थी, जिसको उसको ऑर्डर दी गई थी, जिसका उसको साई दी गई थी. सिर्फ वो जूते वो बनाता था, लिहाजा उसमें ज़्यादा जूते नहीं थे, सिर्फ वो जूते पड़े हुए थे जिसकी उसको क्या ऑर्डर दी गई थी, उसको फरमाइश की गई थी, लोगों ने जो उनको ऑर्डर दिया था. एट द फार एंड, और जो उसका क्या, उसकी दुकान का जो क्या था, दूर का जो एंड मीन्स वैसे कोना, जो दूर का कोना था, ऑफ वॉल यानी दीवार का, उसके दुकान की जो दीवार थी उसका जो दूर का क्या था, कोना था, एंड सिरा था, ऑफ द शॉप दुकान की वो क्या था, वो सिरा. वाज हैंगिंग अ स्मॉल साइन बोर्ड, यानी उसके दूर के कोने में, उस दुकान के दूर वाले कोने में एक क्या लटका हुआ था, वाज हैंगिंग लटका हुआ था, अ स्मॉल साइन बोर्ड, एक छोटा सा इश्तिहार वाली या इश्तिहारी तख्ती या तख्ता, जिस पे क्या वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं,
जिस पे वो इश्तिहार लगाते थे। तो साइन बोर्ड को क्या कहते हैं? इश्तिहारी तख्ता। यानी उस दुकान के, बाकी तो बंजर दुकान थी, लेकिन उसके दूर के कोने में जो दीवार का जो दूर का कोना था उस पे एक इश्तिहारी तख्ता या तख्ती लगी हुई थी। शोइंग जरीन गुल, और उस साइन बोर्ड, उस इश्तिहारी तख्ती पे क्या लिखा हुआ था? जरीन गुल एंड ब्रदर, जरीन गुल और उसके भाई। शोइंग मीन्स वैसे दिखाना, यानी उस तख्ती पे क्या दिखाया गया था, लिखा हुआ था जरीन गुल और उसके भाई। मैं रिपीट करता हूँ, कहते कि दुकान का जो बाकी का हिस्सा था वो बिल्कुल बंजर था, किस एक सहरा की तरह। सिर्फ उसका कि यानी उस दुकान के दीवार के दूर वाले कोने पे एक क्या इश्तिहारी क्या तख्ती लगी हुई थी, और उस तख्ती पे लिखा हुआ था जरीन गुल और उसके भाई। द शूज दैट जरीन गुल मेड, वो जूते जो जरीन गुल क्या बनाते थे, नेवर फेल्ड, वो कभी भी नाकाम नहीं हुए। यानी जरीन गुल जो भी जूते बनाते थे वो कभी भी नाकाम नहीं हुए। टू फिट, फिट मीन्स पूरा आने में। फिट का लफ्ज़ी माने क्या है? मौजू, मुनासिब। यहाँ पे पूरा आने में। इन द फीट, फीट मीन्स पाँव में, पैरों में। यानी जरीन गुल जो भी जूते बनाते थे वो कभी भी क्या पैरों में पूरा आने में कभी भी नाकाम नहीं रहते थे, नाकाम नहीं होते थे। यानी वो हमेशा पैरों में क्या पूरे आते थे। जरीन गुल काका जो भी जूते बनाते थे वो हमेशा पैरों में क्या पूरे आते थे, फिट आते थे। फिट यहाँ मीनिंग क्या है? पूरे आना। वैसे फिट का लफ्जी मानी क्या है? मुनासिब, मौजू। इन द फीट, वो पैरों में हमेशा पूरे आते थे। एंड दे लास्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, और वो जूते जो थे वो क्या आते थे? लास्ट मीन्स बाकी रहना या चलना, यानी वो जूते चलते थे। लास्ट यहाँ पे चलना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, गैर मामूली तौर पर। लॉन्गर, ज़्यादा अरसे तक वो चलते थे। वो गैर मामूली तौर पर वो जूते जो जरीन गुल काका बनाते थे वो ज़्यादा अरसे तक चलते थे। एज यूजुअल, यानी मामूल से वो ज़्यादा अरसे तक चलते थे। जरीन गुल काका जो जूते बनाते थे तो वो मामूल से ज़्यादा अरसे तक वो चलते थे। यूजुअल मीन्स मामूल, लॉन्गर मीन्स ज़्यादा अरसे के लिए। टू मेक सच शूज, इस तरह के जूते बनाना। टू मेक सच शूज, इस तरह के जूते बनाना। एज ही मेड, जिस तरह वो बनाते थे, जिस तरह जरीन गुल बनाते थे। सीम्ड, दिखाई देते थे। टू मी, मुझे दिखाई देते थे। देन, उस वक्त। देन मीन्स उस वक्त। एंड सीम्स टू मी नाउ, और अभी भी मुझे दिखाई देते हैं। मिस्टीरियस, पुरअसरार दिखाई देते थे। मिस्टीरियस मीन्स पुरअसरार, जो क्या हो? जो क्लियर ना हो, जो वाज़ेह ना हो, जो पोशीदा हो, जो महफी हो। यानी दे लास्टेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉन्गर देन यूजुअल टू मेक सच शूज एज ही मेड, इस तरह के जूते बनाना जिस तरह जरीन गुल बनाते थे। वो क्या था? सीम्स टू मी, वो मुझे दिखाई देते थे। देन, उस वक्त, जिस वक्त वो जूते बनाता था, देन, तब। एंड सीम्स टू मी नाउ, और अभी भी। मिस्टीरियस, वो मुझे पुरअसरार दिखाई देते हैं। एंड वंडरफुल, और हैरत अंगेज दिखाई देते हैं। वंडरफुल का मतलब क्या है? हैरत अंगेज, हैरान कुन। मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, पुरअसरार और हैरत अंगेज, यानी उम्दा दिखाई देते थे। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अभी भी याद है। आई स्टिल रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स याद होना, मुझे अभी भी याद है। आई स्टिल रिमेंबर माई हेसिटेंट रिमार्क्स, मुझे अभी भी याद है मेरे क्या? हिचकिचाने वाले। हेसिटेंट मीन्स रुकावट महसूस करने वाले, हिचकिचाने वाले। रिमार्क्स, रिमार्क्स मीन्स क्या? रिमार्क्स का लफ्ज़ में क्या? राय या ख्यालात। मुझे अभी भी वो क्या? हिचकिचाहट वाले मेरे जो क्या थे? ख्यालात थे, वो अभी भी याद है। रिमार्क्स मीन्स बात करना, राय देना, अपने ख्यालात का इजहार करना। रिमार्क्स, मुझे अभी भी अपना हिचकिचाने वाला जो क्या थी?
जो राय थी वो अभी भी याद है। रिमार्क्स मीन्स राय, ख्यालात। वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम, यानी जब मैं उसको फैला रहा था, जब मैं फैला रहा था। स्ट्रेचिंग मीन्स फैलाना, स्ट्रेचिंग आउट टू हिम, जब मैं उसकी तरफ फैला रहा था। माई यूथफुल फुट, मेरे जवानी का पैर, पाऊ, यानी मेरे जवान, यूथफुल मीन्स जवानी का या जवान। वो क्या कहते हैं, मुझे अभी भी वो याद है, वो क्या, अपने हिचकिचाने वाले क्या ख्यालात, जब मैं अपने पैर को उसकी तरफ, यानी ज़रीन गुल काका की तरफ स्ट्रेचिंग फैला रहा था। माई यूथफुल फुट, मेरे क्या, मेरा जो जवान पैर था, मेरे जो जवानी का पैर था। तो मैंने क्या कहा, Isn't it awfully hard, क्या ये बहुत, awfully मीन्स, वैसे awful का मतलब है खौफनाक हद तक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, awfully मीन्स बहुत ज़्यादा। मैंने उससे पूछा, Is it awfully, क्या ये बहुत ज़्यादा hard, मुश्किल नहीं है, to make shoes, जूते बनाना, in such tough condition, इस तरह की मुश्किल हालात में। tough मीन्स मुश्किल, कंडीशन मीन्स हालात। मुझे अभी भी याद है जब मैंने उनसे पूछा कि क्या ये बहुत मुश्किल नहीं है कि इस हालात में, इस तरह के मतलब हालात में जूते बनाना क्या बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी कह रहे कि ये अल्फाज जो मैं उसको बता रहा था, उससे जब मैं ये अल्फाज पूछ रहा था, तो उस वक्त मैंने क्या थे, हेसिटेंट रिमार्क्स, मुझे अभी भी याद है। और मेरा हिचकिचाने वाला क्या, हिचकिचाने वाली बात, मेरे हिचकिचाने वाले ख्यालात मुझे अब भी याद है जब मैं उससे पूछ रहा था कि क्या इस हालात में जूते बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। इन सच टफ कंडीशन, इस तरह के मुश्किल हालात में। तो जब मैंने उससे पूछा कि क्या इस तरह के सख्त हालात में जूते बनाना मुश्किल नहीं है, तो उसने क्या किया, द सरपेंटाइन, क्या है, सरपेंटाइन रिंकल्स रिगल्ड, तो उसके जो चेहरे पे क्या थी, जो उसके क्या थे, स्किन, जो उसकी चमड़ी थी, ठीक है। सरपेंटाइन्स उसकी क्या थी, सरपेंटाइन्स का सरपेंट से निकला, और सरपेंट मीन्स सांप, सरपेंटाइन मीन्स सांप जैसा, सांप जस्ट लाइक स्नेक। यानी उसकी क्या था, उसके जो क्या थे, उसकी जो चमड़ी थी, जो बिल्कुल किसकी तरह, सांप की तरह जो उसकी चमड़ी थी। रिंकल्स, उसके जो क्या थी, सांप की तरह जो जुरिया थी। रिंकल्स मीन उसके स्किन में, उसकी चमड़ी में जो क्या जुरिया थी। रिंकल्स का लफ्ज़ माने क्या है, जुरिया, लाइनिंग, वो लकीरें जो होती है इंसान के स्किन में, उसको क्या कहते हैं, रिंकल्स। यानी जब मैंने उससे बात पूछी तो उसकी क्या थी, सांप की तरह उनकी जो जुरिया थी, रिंकल में जुरिया, रिंकल्ड, रिगल्ड, तो क्या हो गए, वो बलकाते हुए, वो बलका गए। बलका मीन्स मोड़ना, मोड़ने को क्या कहते, इस तरह जाना, जिगजैग, टेढ़ा जाना, उसको कहते हैं रिगल्ड। रिगल्ड मीन्स बलकाना। तो जब मैंने उससे ये सवाल पूछा तो उसकी क्या है, सांप जैसी जो जुरिया थी वो क्या, वो बलकाए। ऑन हिज स्माइलिंग फेस, उनकी क्या, मुस्कुराने वाले, मुस्कुराहट भरे चेहरे पे। स्माइलिंग मीन्स मुस्कुराहट वाली, मुस्कुराहट वाला जो चेहरा था उस पे वो जो सांप जैसे जो क्या थे, जुरिया थी, वो बलकाए। ही आंसर्ड, और उसने जवाब दिया, इट इज़ एन आर्ट, कि ये जो जूते बनाना है ये क्या है, ये एक फ़न है। आर्ट मीन फन। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। यानी इसमें ये बताया जा रहा है कि मुझे अभी भी याद है जब मैंने हिचकिचाते हुए ज़रीन गुल काका से पूछा कि क्या इस तरह के सख्त हालात में जूते बनाना मुश्किल नहीं है, तो फिर उसने क्या किया, उसने जवाब दिया, और उसका जो जुरिया थी, जो बिल्कुल सांप की तरह उसके क्या, स्किन की जो जुरिया थी वो बिल्कुल बलकाए, और उसने मुझे जवाब दिया कि जूते बनाना जो है ये क्या है, ये एक फ़न है। तो ये उसका क्या था, जवाब था। नाउ लेट्स डिस्कस वंस अगेन कि हमें क्या पूछा जा रहा है। यही इसी का अगर मैं समराइज़ करूँ तो इस तरह कह सकते हैं कि उसकी जो दुकान थी वो इस तरह बंजर थी जिस तरह की क्या होता है, एक सहरा होता है, और उसके दूर, यानी उस दुकान के दूर वाले क्या कोने में एक इश्तिहारी तख्ती लगी हुई थी जिस पे लिखा हुआ था ज़रीन गुल एंड ब्रदर्स, ठीक है।
इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि वो जो भी जूते बनाते थे तो वो बिल्कुल पैर पे पूरे आते थे और बहुत ज़्यादा अरसे तक वो चलते थे। उसके जो जूते थे वो बहुत ज़्यादा अरसे तक चलते थे। और इसके अलावा वो कहता है, ये राइटर जो है, जो ऑथर है, ये कहता है कि मुझे अभी भी वो मेरे हिचकिचाहट वाले या हिचकिचाने वाले अल्फाज मुझे अभी भी याद है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या इस हालत में, इस मुश्किल हालत में जूते बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो उसने फिर क्या किया, उसने जवाब दिया कि ये क्या है, जूते बनाना एक फ़न है। तो ये इसकी समरी हो गई। नाउ आफ्टर दिस समरी लेट मी डिस्कस the grammatical structures which have been used inside the same passage. So let's take a start. Okay, first of all, but before going to start, let me present words meaning. Words meaning. First of all, we have the word barren. Barren means banjar. Desert means sahara. Sahara या infertile land. Infertile जो जरहेज ना हो, जो बंजर ज़मीन हो, उसको क्या कहते हैं, इनफर्टाइल, या डेजर्ट भी कहते हैं, एरिड भी कहते हैं, ARID, एरिड। सो सहरा। नाउ ऑर्डर की जो मीनिंग है वो तो आपको पता है कि हुक्म देना, लेकिन यहाँ पे हुक्म नहीं, फरमाइश करना, साई देना। जब आप जूतों के लिए क्या देते हो, ऑर्डर देते हो, तो फरमाइश करते हो। फार मीन्स दूर, एंड मीन्स सिरा या क्या, कोना। हैंगिंग मीन्स लटका हुआ। साइन बोर्ड, मैंने अभी आपको बताया, साइन बोर्ड का मतलब है इश्तिहारी तख्ता या तख्ती। फिट का मतलब है मुनासिब या पूरा। लास्ट का मतलब है बाकी रहना, या यानी इधर इस टेक्स्ट में लास्ट का मतलब है चलना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, गैर मामूली तौर पर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स मामूली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स गैर मामूली तौर पर। यूजुअल मीन्स मामूल, रोजमर्रा। मिस्टीरियस मीन्स पुरस्रार। वंडरफुल मीन्स हैरत अंगेज, उम्दा। रिमेंबर मीन्स याद रखना। हेसिटेंट मीन्स हिचकिचाने वाली। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव रिमार्क्स मैंने अभी आपको बताया, ख्यालात या राय। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव स्ट्रेचिंग मीन्स फैलाना। स्ट्रेचिंग का क्या मतलब है, फैलाना। ओके, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव यूथफुल मीन्स जवान या जवानी का। ऑफुली मैंने कहा, ऑफुली मीन्स खौफनाक हद तक या बड़ी हद तक या बहुत ज्यादा। टफ मीन्स मुश्किल। देन वी हैव सरपेंटाइन्स मैंने आपको बताया भी दैट सरपेंटाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सरपेंट, और सरपेंट मीन्स स्नेक। तो सरपेंटाइन का क्या मतलब है, स्नेक। नेक्स्ट वी हैव रिंकल्स मीन्स जूरिया। लाइंस, जो आपके स्किन्स में जो लाइंस होते हैं जब आप बूढ़े होते हो तो उसको क्या कहते हैं, रिंकल्स, जूरिया। रिगल मीन्स बलकाना, टेढ़ा, जिगजैग जाना, इसको कहते हैं रिगल। और लास्ट आपका क्या है, आर्ट मीन्स फन। आर्ट का क्या मतलब है, फन। सो ट्रांसलेशन, स्केच, objectives, and in the last we have words meaning. I hope that you have understood all these things.